Good morning, students. Today we are going to start the chapter 6, The Land of Hot Sand, Saudi Arabia. So, let's start. In the previous chapter, we have read about the reason having extremely cold climate. In previous chapter में हमने किसके बारे में पढ़ा था? About the Greenland which have extremely cold climate. But in this chapter, we will discuss about the reason of the world experience hot climate. हम अब इसमें सऊदी अरेबिया के बारे में पढ़ेंगे जो जस्ट अपोजिट ग्रीनलैंड के हैं, जहाँ पे कैसा है एक्सट्रीमली हॉट क्लाइमेट. डेजर्ट्स आपने इस पिक्चर में देख रहे होंगे, डेजर्ट एरिया बना हुआ है और इसका नाम भी क्या है, द लैंड ऑफ हॉट सैंड, है ना. तो डेजर्ट आर द एरियाज ऑफ द वर्ल्ड विथ वेरी लो रेनफॉल एंड विच ऑल्सो एक्सपीरियंस एक्सट्रीम्स ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. एक्चुअली में जो डेजर्ट एरिया होता है इसके बारे में आप लोग वेल नोन होंगे कि जहाँ पर रेनफॉल होती है वो बहुत ही लो होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होता है. यहाँ पर या तो बहुत ही ज़्यादा हॉट होगा एरिया या एक्सट्रीम कोल्ड होगा. नाउ आई थिंक यू आर थिंकिंग दैट जो डेजर्ट होता है वो तो बहुत हॉट होता है, कोल्ड तो नहीं होता, है ना. बट एक्चुअली द डेजर्ट आर द ऑफ द टू टाइप्स. एक्चुअली में जो डेजर्ट होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट. Now look at this picture. Actually, there are two types of desert. One is hot desert and the other one is cold desert. Now look at this picture. What is hot desert? The desert which are nearby the equator means जो desert equator के पास they are in the region of Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. These desert are the hot desert like this. And just opposite, when we talk about the cold desert, the desert which are nearby the frigid area means polar area के पास में in temperate zone जो जो desert होंगे, these are the cold desert. Okay. So the Arabian, Thar and the Sahara are the example of hot desert. कौन कौन से हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल हैं? अरेबियन, थार एंड द सहारा. ये हॉट डेजर्ट के कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एंड वेयर इज द लद्दाख एंड गोबी, विच लद्दाख एंड गोबी आर द कोल्ड डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड. Clear? But in this chapter we shall learn about the Arabian desert. इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अरेबियन डेजर्ट के बारे में. एक्चुअली में हम लोग अरेबियन डेजर्ट के बारे में तो पढ़ने के साथ साथ वहाँ पर जो एक प्लेस है दैट इज़ कॉल्ड द सऊदी अरेबिया, वी विल डिस्कस अबाउट दैट एरिया, दैट प्लेस. But before explaining, I will tell you there is a map on page number 42, the world hot desert. In this map you will see the different types of hot desert. Different hot desert are there. The California desert, like Atacama desert, Sahara desert, you can see in that map. So please read that map carefully. Now we will discuss about the location of Saudi Arabia. Now see in this picture, the Saudi Arabia, a country in the Middle East, is located in the Arabian desert. सऊदी अरेबिया एक्चुअली में कहाँ पर है? अरेबियन डेजर्ट में है, बट ये किस साइड है? मिडल ईस्ट साइड में है. ओके. इट इज़ सराउंडेड बाय द रेड सी इन द वेस्ट. आप देखिए इसके वेस्ट साइड में क्या बना हुआ है? देयर इज़ रेड सी. एंड इन द साउथ साइड, व्हेन यू लुक एट द साउथ साइड, and no, in this picture I'll show you. Now look at this picture. The Red Sea in the west side and Arabian Sea in the south. Are you seeing this? Arabian Sea in the south and Persian Gulf is also is there, and Gulf of Oman towards the east. In the north side you are seeing the Jordan, Israel, Iraq and Kuwait are situated, and Yemen, Oman and UAE are located in the south. Please see these all the places in the map. And the Tropic of Cancer passes through the Saudi Arabia. The very main thing is that the Tropic of Cancer passes through Saudi Arabia. So that is why this area is very hot.
सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द सऊदी अरेबिया. इट इज़ वेरी बिग कंट्री. ये कंट्री बहुत बड़ी है बट हैज़ अ स्मॉल पॉपुलेशन. इट इज़ बिग कंट्री बट there is a very small population. Why? Because of hot climate. The land is mostly a rocky plateau. Actually में ये जो place है वो कैसी है, बहुत rocky plateau है, बट इस इट इज़ कवर्ड विथ लूज सैंड. ये बिल्कुल लूज सैंड से कवर्ड है, जैसा कि डेजर्ट के बारे में आप जानते हैं. द हिल्स ऑफ द लूज सैंड्स आर कॉल्ड द सैंड ड्यून्स. एज यू नो, I think you have read about this sand dunes in the previous classes. What is sand dunes? Sand dunes is the small hills of sand. ये क्या होती हैं? Small hills like होती हैं जो sand की बनी होती हैं, इसको हम बोलते हैं sand dunes. These sand hills can move from one place to another. Like जो माउंटेन जो hills होती हैं, जो रियल हिल्स होती हैं, दे कांट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट दीज सैंड ड्यून्स कैन मूव वन प्लेस टू अनदर बाय द strong winds and the dust storms, and these are very common in desert area. Saudi Arabia has no perennial rivers और लेक्स. यहाँ पे कोई भी रिवर और लेक नहीं है. जितना भी यहाँ पे जो डोमेस्टिक वर्क है, जितना वर्क होता है, वो यहाँ पर किसके थ्रू होता है? जस्ट with the Arabian Sea or Red Sea इनके through. And when we talk about the climate, the general climate of Saudi Arabia is extremely hot and dry. As you know that कि जो डेजर्ट एरिया होता है वहाँ का क्लाइमेट जो होता है वो बहुत ही हॉट होता है और ड्राई होता है. रेनफॉल बिल्कुल लो होती है. डे टेम्परेचर इज़ वेरी हाई बट एट द नाइट द नाइट्स आर कूल एंड द प्लेसेंट बिकॉज ऑफ डेजर्ट. जो सैंड होती है वो डे टाइम पे क्या होता है, सन की रेज से वो बहुत हॉट हो जाती है, तो टेम्परेचर बहुत हॉट भी रहता है. बट इन नाइट टाइम क्या होता है, जो सैंड होती है वो ठंडी हो जाती है, तो नाइट्स आर द वेरी कूल. डस्ट स्टॉर्म यहाँ पे बहुत कॉमन होते हैं. द समर सीजन कंटिन्यूज फ्रॉम मे टू सेप्टेम्बर. यहाँ पर मई से सितंबर तक जो समर सीजन है वो कंटिन्यू रहता है. बट ड्यूरिंग द विंटर डेज आर वार्म. विंटर्स में भी यहाँ पे डे कूल नहीं होते, वार्म होते हैं, बट नाइट्स आर कोल्ड एंड इट लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू अप्रैल एंड देयर आर हार्डली एनी रेनफॉल. द क्लाइमेट अलॉन्ग द कोस्टल एरियाज इज प्लेसेंट. यहाँ पे जो कोस्टल एरिया, जितना भी एरिया यहाँ पे रेड सी, अरेबियन सी के पास में होता होगा, वो एरिया कोस्टल एरिया है, तो यहाँ का क्लाइमेट बहुत प्लेसेंट होता है. जैसे हम इंडिया के बारे में भी जानते हैं, रेनफॉल यहाँ बहुत ही कम होती है, but dust storm throughout the year very common. Okay, and when we talk about the vegetation, so as you know the area of the desert are not very well for the vegetation, so very limited parts of Saudi Arabia are suitable for the cultivation. यदि हम वेजिटेशन की बात करें, कल्टीवेशन की बात करें, तो यहाँ पर पूरे एरिया में कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं है. सऊदी अरेबिया के बहुत ही लिमिटेड पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पे कल्टीवेशन प्रॉपर हो पाता है. वाटर इज़ ऑब्टेन्ड मेनली बाय द सी. यहाँ पे मेनली जो कल्टीवेशन में किसकी नीड होती है? वाटर की. यहाँ पर वाटर की ही मेन प्रॉब्लम है, क्योंकि रेन तो कल्टीवेशन मेन किस पर डिपेंडेंट होता है? रेनफॉल पे, और यहाँ रेनफॉल की मेजर इशू है. तो यहाँ पे जो वाटर है वो मेनली किससे मिलता है? सी से. बट वो भी कैसा होता होगा? सॉल्टी. तो सबसे पहले उसको उस सी वाटर को डीसॉल्ट किया जाता है, एंड इट इज़ आफ्टर दैट इट इज़ यूज्ड फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन. उसके बाद ही उसको डोमेस्टिक पर्पस या कल्टीवेशन के पर्पस से उसका यूज़ किया जाता है. द प्लांट्स हैविंग हाई रेसिस्टेंट इन द लेस वाटर रिक्वायरमेंट ग्रो हियर. आपको पता है कि डेजर्ट एरिया में वही प्लांट ग्रो कर पाते हैं जो इतने हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर पाते हैं और जिनको लेस वाटर की नीड होती है. ओके, तो मोस्ट ऑफ दीज प्लांट्स हैव डीप रूट इन द सॉइल एंड ओएसिस आर द परमानेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. यहाँ पे जो ओएसिस है, दीज आर द परमानेंट सोर्सेज ऑफ वाटर. और यहाँ के कॉमन जो प्लांट जो ट्री हैं, दैट इज़ डेट पाम, व्हीट एंड बार्ले. यहाँ पे जो मेन प्रोड्यूस्ड होते हैं, दीज आर द डेट पाम, व्हीट एंड बार्ले आर प्रोड्यूस्ड है. जो यहाँ के लोग हैं वो बहुत ही सेटल लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, बट स्टिल जो कुछ विलेजर्स हैं वो कैरावन्स में मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर. नाउ लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इकोनॉमी. The Saudi Arabia is a rich country.
जो सऊदी अरेबिया है वो बहुत ही रिच कंट्री है. वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मिनरल ऑयल. यहाँ पर मिनरल ऑयल मिलता है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेरी रिच कंट्री. इट इज़ फाउंड एट ग्रेट डेप्थ अंडर द सैंड. अब आप बोलेंगे कि सैंडी एरिया में मिनरल ऑयल इट इज़ वेरी हार्ड, बट नो, यहाँ पर सैंड के भी नीचे बहुत ही डेप्थ में जो मिनरल ऑयल है वो फाउंड होता है, एंड इट इज़ एक्सपोर्टेड टू ऑलमोस्ट एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. और वो सऊदी अरेबिया से वर्ल्ड की मोस्ट ऑफ द कंट्री में वो एक्सपोर्ट होता है. सो बिकॉज ऑफ मिनरल ऑयल सऊदी अरेबिया इज़ अ rich country, we can say that. India also buy a large quantity of mineral oil from the Saudi Arabia, even though इंडिया में भी सऊदी अरेबिया से मिनरल ऑयल को इम्पोर्ट करते हैं. एंड देयर आर मैनी ऑयल रिफाइनरी ऑल्सो इन सऊदी अरेबिया. केवल मिनरल ऑयल को यूज़ तो नहीं किया जा सकता. अब तो उस क्रूड ऑयल से मिनरल ऑयल्स को वो लोग कई ऑयल रिफाइनरी के थ्रू उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स. तो केवल एक मिनरल ऑयल को वो लोग एक्सपोर्ट नहीं करते. जो पेट्रोल का यूज़ है वो अलग है, डीजल का यूज़ अलग है, एंड द कैरोसिन आर द डिफरेंट. So they through the oil refineries they converted the mineral oil or the crude oil into the petroleum, diesel, kerosene and the different other useful products. So most of these products are exported to the other countries. इनमें से बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, दूसरी कंट्री में वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं.